اب خبر شامل کرتے ہیں کاموں کے اسے، جہاں تور کلاتھ ہاؤس گول بازار کاموں کے کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ اس کے مہمان خصوصی چودھری رفیق ورک، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی اور ممبر امن کمیٹی چودھری شاہد حسین جعفری تھے۔ ان کے علاوہ سید طیب عباس نقوی، سید شاہد حسین نقوی، زرغام عباس بھنڈر، سیٹھ ریاض، سیٹھ نثار اور انجمن تاجران کے عہدیداران نے شرکت کی۔ افتتاح کے موقع پر آنے والے تمام معزز مہمانوں نے تور کلاتھ ہاؤس کے کاروبار کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ لاہور سے رپورٹ کرے ہیں بیورو چیف لاہور امجد ہاشمی۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر سے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات۔ پروفیسر ڈاکٹر سمین صدیقی، ڈاکٹر ظاہر گل وفد میں شامل تھے۔ ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر فرحان، ڈاکٹر ابتسام اور ڈاکٹر احمد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے وفد کو جاری پولیو مہم کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سروسز کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت نے صحت عامہ کے متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔ ریویمپنگ پروگرام سے عوام کو علاج معالجہ کے بہتر سہولیات کی فراہمی ممکن ہو پائے گی۔ بی ایچ یو کی آؤٹ سورسنگ کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروجیکٹ صحت عامہ کی سہولیات کی فراہمی میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ملاقات میں جوائنٹ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر جوبائٹ ہوسن کی جانب سے ان کے مانچسٹر آفس میں بنگلہ دیش کے نیو ایئر کی مناسبت سے شاخی میلہ کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں مختلف قسم کے اسٹال لگائے گئے، جبکہ مختلف فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ بنگلہ دیش کے لندن میں ہائی کمشنر مس عابدہ اسلام نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ دوسرے شرکت کرنے والوں میں ممبر برطانوی پارلیمنٹ افضل خان، ایم پی اینڈریو گوئن، ڈپٹی لارڈ میئر مانچسٹر کونسلر شوکت علی، گریٹر مانچسٹر کی ہائی شیرف مارٹن، ڈپٹی میئر راسٹیل کونسلر فیصل رانا، میئر ٹیمسائڈ شبلی عالم، سابق میئر کونسلر تفہیم شریف، کونسلر نائلہ شریف، کونسلر ارم فیصل، کونسلر محمد کریم، کونسلر زشرف میاں، ڈپٹی لیڈر اولڈ ہوم کونسلر عبدالجبار، امین چودھری، للو میاں، عائشہ باجی، ریحانہ، ساجد الرحمان اور بنگلہ دیش کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف آن نیوز نارتھ ویسٹ عارف چودھری۔ اس موقع پر ہائی کمشنر مس عابدہ اسلام نے کہا کہ آج بوشاکھی کا میلہ اور ہمارا نیو ایئر بھی ہے۔ اس موقع پر تقریب میں موجود تمام مہمانوں کو نیا سال مبارک ہو۔ آج سب کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ہمارے اسسٹنٹ ہائی کمشنر جوبائٹ ہوسن نے بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسسٹنٹ ہائی کمشنر جوبائٹ ہوسن نے ان کی دعوت پر آنے والوں کا دلی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آگے بھی ایسی تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ممبر برطانوی پارلیمنٹ اور ترکیہ کے لیے وزیر اعظم برطانیہ کے مالی مشیر افضل خان نے آج میلے اور نئی ایئر کی مناسبت سے بنگلہ دیش کی کمیونٹی کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم سب مل کر ایسی خوشیاں منانی چاہیے۔ ہم مانچسٹر میں ہائی کمشنر مس عابدہ اسلام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نارتھ ویسٹ برطانیہ کی پہلی بنگلہ دیشی خاتون میئر ٹیم سائڈ کونسلر شبلی عالم نے آج کے دن کو یادگار قرار دیا اور کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آج ہائی کمشنر مس عابدہ اسلام بھی میرے میئر ایریا میں آئی ہوئی ہیں۔ میری طرف سے تمام کمیونٹی کو بنگلہ دیش کے نئے سال اور میلے کی مبارکباد ہو۔ روسٹل کے ڈپٹی میئر فیصل رانا ان کی اہلیہ کونسلر ارم فیصل نے کہا کہ ڈپٹی میئر منتخب ہونے کے بعد پہلی دفعہ کسی فنکشن میں آئی ہیں۔ ہمیں یہاں تمام کمیونٹی کو ایک جگہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ہم بنگلہ دیش کمیونٹی کو نئے سال اور میلہ کی مبارکباد دیتے ہیں۔ سبق میں کونسلر تفہیم شریف اور کونسلر نائلہ شریف نے آج کا کامیاب فنکشن کرانے پر اسسٹنٹ ہائی کمشنر جوبائٹ ہوسن کو کاوشوں کو سراہا اور نیو ایئر کی مبارکباد دی۔ ڈپٹی لیڈر اولڈم کونسلر عبدالجبار، کونسلر اشرف میاں اور ریحانہ اور دوسروں نے بھی آج کا میلہ اور نیا سال کو منانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ عارف چودھری، بیورو چیف، نارتھ ویسٹ برطانیہ۔ As High Sheriff of Greater Manchester, I want to wish the Bangladesh community here today in Manchester the most wonderful New Year, and I'm very, very delighted to be invited here, very honoured, and I wish you all the very, very best in the future. کہ میں آج پہلی بنگلہ دیشی میئر میں ٹیم سائڈ میں الیکٹ ہوا ہوں اور نارتھ ویسٹ میں گریٹ نارتھ میں، تو
मैं इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ अगर और औरतें हमारे मुल्क से बांग्लादेशी पाकिस्तान मुल्क से अगर फॉरवर्ड होकर काउंसलर बने मेयर बने तो मेरे लिए गौरव की बात है और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी फॉरवर्ड हुआ हूँ उस हिसाब से और भी औरतें सामने आए और अपने देश को अपने वतन को अपने मुल्क कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक मेयर हूँ ग्रेटर नॉर्थ में। थैंक यू वेरी मच। कि मैं आज पहली बांग्लादेशी मेयर में टेमसाइड में इलेक्ट हुआ हूँ और नॉर्थ वेस्ट में ग्रेट नॉर्थ में तो मैं इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ अगर और औरतें हमारे मुल्क से बांग्लादेशी पाकिस्तान मुल्क से अगर फॉरवर्ड होकर काउंसलर बने मेयर बने तो मेरे लिए गौरव की बात है और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी फॉरवर्ड हुआ हूँ उस हिसाब से और भी औरतें सामने आए और अपने देश को अपने वतन को अपने मुल्क कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक मेयर हूँ ग्रेटर नॉर्थ में। थैंक यू वेरी मच। Today we are celebrating the Bengali New Year 1432. It's a great event and I really like the spirit of the people and I thank the Assistant High Commissioner and his team to keep that spirit up. We are celebrating Pohla Boishakh, Boishakhi Mela. We are here celebrating the Bangla New Year here. Although we are doing it just a month later than the date because of the local climate. But we are doing it in a very festive way. A lot of our community people and our friends, foreign friends, they are all here to celebrate and we are grateful to all who have come here. Thank you. I'm really honored to be here as Assistant High Commissioner in Manchester. It's been a great event, also a cultural event, and it's for me it's a privilege because I'm the first Bangladeshi female in the north to be obviously the mayor of Chermside, so it's an honor for me. And it's Her Excellency from London is here as well from Bangladesh. Yes. Bismillah, here we are in Tameside. We are very blessed and privileged to have the High Commissioner of Bangladesh join us, as well as many other dignitaries, mayors, Lord Mayors. Our first Bangladeshi mayor, Muslim female mayor of the Northwest, has joined us today as well, Councillor Shibli Alam. It's a great way to start her tenure. Many communities have come together, and this is what it's about. It's about communities coming together and enjoying celebrations. I wish a happy new year to all my Bengali brothers and sisters across the world. हाँ, बांग्लादेशी कम्युनिटी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका जो न्यू बांग्ला ईयर है 1432 और मुझे खुशी है कि हाँ बहुत से पाकिस्तानी भी उनके साथ आज ज्वाइन किए हुए हैं और उनके हाई कमिश्नर भी लंदन से आए हुए हैं। तो यही वो चीज़ है जो हमने एक दूसरे की तरफ करनी है, एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाना है ताकि हमारा जो तल्लक है और ज़्यादा मजबूत हो इस मुल्क के लिए भी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी। तो हैप्पी बांग्ला न्यू ईयर। And I'm extremely honored to come here on the invitation of the Assistant High Commissioner of Bangladesh celebrating Boishakhi Mela. And I'm extremely grateful to be privileged in front of a lot of dignitaries who have come and the community to celebrate this program. It's nice to see people from different communities coming together and enjoying this event. And সবাইকে শুভ নববর্ষ বাঙালি 1432 এই লগ্নে সবাইকে শুভ নববর্ষ জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ করিম, কাউন্সিলর টেমসাইড কাউন্সিল। माशाल्लाह कम्युनिटी में जो हमारी बंगाली कम्युनिटी है उनकी बड़ी बड़ी हार्ड वर्क है यहाँ पे पूरे यूके के अंदर और इसका सबसे बड़ा सहारा आप देख सकते हैं कि इनके जो टेक्सटाइल्स के अंदर जो ग्रोथ है, जो कंट्री के अंदर ग्रोथ है वो इनकी मेहनत का और इनके जोश बलबले का इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा सबूत है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बुलाया आज ये जो हैप्पी न्यू ईयर इनका बांग्लादेशी हैप्पी न्यू ईयर है उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो सारे इनके जो कम्युनिटी लिस्ट में जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। So today we came to the Assistant Bangladesh High Commission to celebrate Boishakhi Mela, which is the first day of the Bangla New Calendar. So I want to wish everybody a happy Bangla New Year. I hope you have a wonderful year. And I want to thank the High Commissioner
of Bangladesh to UK, Miss Abida Islam, for coming from London here to make this program a great success. Thank you so much, and I wish you all the best. बांग्लादेशी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर सब जमा हुए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये इनका 1432 जो है वो साल है और इन्होंने बताया था कि ये अकबर जो हमारे मुगल एम्परर थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था और ये टेम साइड में हमें देख के बहुत खुशी आ रही है कि एक तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर और दूसरी बात ये है कि बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है जिससे कि एक हमारी कॉन्फिडेंस मिलता है, यूनिटी हमारी होती है और ये एक कोहेजन कम्युनिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. was very cultural. It brought the beautiful heritage of our culture. It was brilliant, really, and it was just so good to see the diversity in here and the warmth and hospitality. I wish the Bangladeshi community in Manchester great success, and hopefully we move forward more success. कोलबोनी को मेयर बने 2 साल मुकम्मल हो गए. इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया उस्मा बार्सिलोना में एक तकरीब का एहतमाम किया गया. ये तकरीब सिटी हॉल के सलोन दी सालंत में मुनक़िद हुई जिसमें मुख्तलिफ़ शोबों की तंजीमों ने शिरकत की. मोहल्ला अंजमने और इक़्तिसादी इदारे जैसे फंदासियोला कायशा समेत बार्सिलोना की समाजी तंजीमों, इदारों और अंजुमनों के नुमाइंदे मौजूद थे. पाकिस्तानी कम्युनिटी के सोशलिस्ट रहनुमा मोहम्मद इकबाल चौधरी और हाफिज़ अब्दुल रज़ाक सादिक ने भी तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की. मेयर जामा कोलबोनी ने अपनी हुकूमत के पहले 2 सालों के काम का जायज़ा पेश किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बार्सिलोना को पहले की निस्बत बेहतर बनाया गया है और मज़ीद बेहतर बनाने के मंसूबों पर काम कर रहे हैं. बार्सिलोना जो 5000 इज्तिमाई सोशल हाउसिंग यूनिट की तमीर में आगे बढ़ा है जहां हम आवाम के हक के हमायत में तब्दीली ला रहे हैं जैसे कि सियाती अपार्टमेंट्स का खात्मा, किराए की कीमतों पर कंट्रोल और शहरों के दरमियान इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं ताकि मरकज़ी हुकूमत से मौसर इख्तियार का मुतालबा किया जा सके. एक ज़्यादा पायदार महफूज बार्सिलोना में ट्रांसपोर्ट के लिए फ़ंड्स दिए जा रहे हैं. सियाहत से हासिल होने वाली आमदनी की बदौलत तमाम सरकारी स्कूलों की माली मावनत की जा रही है. कोलबोनी ने कहा है कि हम बार्सिलोना के मोहल्लों में अदम मसावात को कम करने के लिए कातालान ज़ुबान को राब्ते की ज़ुबान के तौर पर मजबूत करना चाहते हैं. इन मोहल्लों में अंग्रेज़ी सीखने की सहूलत भी फराहम करेंगे जो सबसे ज़्यादा पसमानदा है. इसके लिए स्कूल के औकात में इंग्लिश कन्वर्सेशन असिस्टेंस का एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. कोलबोनी ने तमाम इदारों की खदमात पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप सब ने इस बेहतर बार्सिलोना की तमीर में किरदी किरदार अदा किया है जो हम सब चाहते हैं. उन्होंने ये भी कहा है कि समाजी तहरीकें और अवामी तंजीमें हमारी तारीख का हिस्सा हैं. जब से सोशलिस्ट पार्टी ने शहर की हुकूमत संभाली है बार्सिलोना बेहतर हो गया है. उन्होंने याद दिलाया है कि हुकूमत के आगाज़ में उन्होंने कहा था कि अवामी मकामात, सफाई और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि इन तीनों शोबों में नुमाया बेहतरी आई है. ताहम उन्होंने माशरे के ताउन की भी अपील की ताकि शहरी जिम्मेदारियों के साथ एक बेहतर बार्सिलोना को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके. तकरीब के इख्तिताम पर मेयर कोलबोनी तंजीमात के नुमाइंदों में घुल मिल गए. इस मौके पर सोशलिस्ट रहनुमा मोहम्मद इकबाल चौधरी और हाफिज़ अब्दुल रज़ाक सादिक ने मेयर को 2 साला बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम. और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा. रुख करते हैं खबरों का. खबर शामिल करते हैं नारोवाल से. डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस की गुज़िश्ता 24 घंटों में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ. DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी. तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 बदनाम ज़माना मनशियात फरोश सैयद हामिद रज़ा और कासिम को गिरफ्तार करके मुलज़मान के कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम चर्स और 54 ग्राम आइस बरामद कर ली. मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासत कर दिया. DPO नारोवाल ने इस अज़म का इजहार किया है कि ज़िला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाज़मान हमतन कोशिश हैं. बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान हमजा नदीम चक नंबर 14 TDA बाली हेड के करीब कार के जाए हादसे पर पहुंच गए. इब्तदाई मालूमात के मुताबिक डूबने वाली कार और इसमें सवार अफराद की हाल तलाश जारी है जिनका अभी तक कोई सुराग न मिल सका. रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कार और इसमें सवार अफराद की अभी तक शनाख्त ज़ाहिर न हो सकी. इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर हमजा नदीम ने रेस्क्यू 112 की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेते हुए डूबने वाली अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ रफ्तार बनाने की हदायत की.
बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन पर इंसाफ के अमल को तेज़ तर बनाने के लिए DPO बकर शहजाद रफ़ीक अवान की एक ही रोज़ में 3 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियाँ SDPO ऑफिस कलोरकोट, थाना खयात खान, शहीद चांदनी चौक और थाना जंडावाला में मुनक़्क़द की गई। DPO बकर ने खुली कचहरियों के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए। इस मौका पर सर्कल कलोरकोट के DSP जफर इकबाल, SHO थाना जात और दीगर पुलिस अफसरान इनके हमरा थे। खुली कचहरियों में सियासी समाजी शख्सियात, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और दीगर शहरियों ने शिरकत की। DPO बकर शहजाद रफ़ीक अवान ने खुली कचहरी के शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों के पुलिस से मुताल्लिक़ मसाइल के हल और शिकायत के इज़ाले के लिए बकर पुलिस हर मुमकिन इक़दामात अमल में ला रही है। इसके अलावा शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और जराइम पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अजहा के सिलसिले में भावलपुर ज़िले में इंतजामात बारे जायज़ा इजलास में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फरूक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल की शिरकत। भावलपुर ज़िला में ईद उल अजहा के सिलसिले में मजमूई तौर पर जानवरों के खरीदो फरोख्त के लिए 6 मकामात मुख्तस किए गए हैं, जिनमें भावलपुर शहर के लिए जज वाली पुली, जहांगीरवाला रोड और यजमान रोड पर शशमाही कैनाल शामिल हैं, जबकि तहसील अहमदपुर शर्किया के लिए रहबर पेट्रोल पंप के करीब LPG रोड पर पॉइंट कायम किया गया है। यजमान में चक नंबर 102 DP कैंची मोड़, खासलपुर में न्यू बस स्टैंड, रेस्क्यू ऑफिस बहावलपुर रोड और हैरपुर टामेवाली में जनरल बस स्टैंड पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के पॉइंट मुकर्रर किए गए हैं। ईद उल अजहा के दौरान शहरियों को सफाई सुथराई की मसाली सर्विसेज की फराहमी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई के इंतजाम और जिला भर में जानवरों की आलाइशों को बर वक्त तलब करने के हवाले से बहावलपुर और तहसीलों में ईद उल अजहा प्लान को ख़त्मी शक्ल देने के लिए मुनक़्क़दा इजलास में बताई गई, जिनमें डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक और DPO बहावलपुर हसन इकबाल शरीक हुए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर समेत कैटल मार्केट मैनेजमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला कौंसल, लाइव स्टॉक और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि मवेशी मंडियों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ और बिलखसूस सायादार जगह की फराहमी, ठंडे और साफ पानी की दस्तियाबी, जानवरों के लिए माहिर हैवानात की मौजूदगी और ज़रूरी अद्वियात को यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।